और जिसका डेटा ये आया 5.9%, जो कि बहुत हाई होता है। 5.9% ऑफ द जीडीपी, टोटल जीडीपी बाय द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज So hello students, welcome back to Pathshala classes. This is Shashwat Dubey, one of the faculty members of Pathshala classes, and today we are going to discuss a very significant news, that is Mexico's new president. Now let's delve into detail, starting with the introduction of the new president, that is Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum has become the first female president of Mexico. She, after getting elected as a president, has set a record of being the very first female president of Mexico. As the slide clearly mentions that she has sworn in as Mexico's first female president, marking a significant milestone for the nation as she takes over the office as a female president by succeeding Miss Andres Manuel Lopez Obrador, her close ally from the Morena party. Sheinbaum's leadership symbolizes a more developmental Mexico. We are expecting a more development and progress in the Mexico after she being the president of Mexico. The historic achievement includes Sheinbaum is the first woman to lead Mexico, and following a long history of male presidents since independence. बहुत टाइम के बाद मेक्सिको has got a female president, obviously first female president, and post independence तक कोई नहीं था female president, हमेशा male presidents ही रहे हैं, and that she has become now the first female president. Along with this, ये कुछ पहला set record नहीं है, already she has gained a record while being a woman to serve as the mayor of Mexican City. वो मेक्सिकन सिटी के पहले ही मेयर रह चुकी थी, और उस टाइम भी शी वॉज द वेरी फर्स्ट वुमन, राइट. एंड एज फार एज द बैकग्राउंड इज कंसर्न, द बायोग्राफी, उनकी बायोग्राफी पहले क्या रह चुकी हैं, क्या रही, करियर, एजुकेशनल, एवरीथिंग विल जस्ट सी इन ब्रीफ. द वेरी फर्स्ट थिंग, as far as the background is concerned, she is the daughter of the famous academic activist. मेक्सिको सिटी के बहुत ही जाने माने एक्टिविस्ट हैं ये, इनके जो फादर हैं, named Sheinbaum, has always embraced her roots and the importance of progressive leadership. Also, her upbringing influenced her commitment to social justice and political change. So we have got high expectations कि इनके प्रेसिडेंशियल जो भी टर्म रहेंगे उसमें काफी मेक्सिकन सिटी में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हम विटनेस कर सकते हैं विथ रिगार्ड टू पॉलिटिक्स एंड द जुडिशरी, particularly the social justice system. As far as the economic assurance is concerned, that इनके प्रेसिडेंशियल जो टेन्योर रहेगा, इनके प्रेसिडेंटशिप पे क्या क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिगार्ड टू द इकोनॉमी. द वेरी फर्स्ट बीइंग Sheinbaum reassured investors that मेक्सिको सेंट्रल बैंक, मेक्सिको का जो सेंट्रल बैंक है उसमें क्या उनका मतलब फोकस रहेगा, रहने वाला है उनके टेन्योर में, that she would remain very focused with regard to the central bank, and for which she will make it an autonomous, independent, autonomous करने की बात उन्होंने reassurance दी है. Along with that, she has also ensured investments and at both national and foreign level, national और international level पे investment पे भी इनका ध्यान रहने वाला है. After becoming the president, what all steps she is going to take, that will be centralized with the economy and particularly central bank. Moving ahead, the challenges ahead. उनके टेन्योर में कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस रहेंगे, हर किसी के टेन्योर में कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं जो कॉम्बैट कर रहे होते हैं एज अ लीडर. द वेरी फोरमोस्ट बीइंग Sheinbaum, since Sheinbaum has inherited a complex situation, complex economic situation. इकोनॉमी आपको बता दें, मेक्सिको में अभी इकोनॉमी बहुत ही हिला डुला मामला चल रहा है, बहुत ज्यादा ही अभी
माहौल सही नहीं है इकोनॉमी का, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, इकोनॉमी का मामला बहुत खराब है वहाँ पर, एंड दैट आफ्टर बीइंग द प्रेसिडेंट शी विल हैव टू कॉम्बैट दैट पर्टिकुलर इशू। और वो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट इशू है, क्योंकि कोई भी कंट्री का इकोनॉमी ही होता है जो उसका स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग का फैक्टर हो पाता है, राइट। तो सबसे पहले तो उनको ये कॉम्बैट करना पड़ेगा इकोनॉमिक इश्यूज जो चल रहे हैं उनकी सिटी में, right? And she marked by the largest budget deficit, as already stated, that अभी largest budget deficit चल रहा है मेक्सिको में since the 1980s, and और ग्रोथ ही बहुत sluggish है। sluggish means बहुत स्लो ग्रोथ है, कुछ डेवलपमेंट खास हो नहीं पा रहा है। तो ये दोनों चीजों पे फोकस होना चाहिए, एक तो स्लो ग्रोथ जो है इकोनॉमी का, और दूसरी चीज जो अभी करंट मेक्सिको सिटी लार्जेस्ट बजट डेफिसिट फेस कर रही है, उसको कैसे कॉम्बैट करें, इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा उनको। So this is going to be a very hectic deal for her as a president. The fiscal deficit is expected to reach 5.9%. Take a note. ये डेटा बहुत हाई है, ये रेशियो बहुत हाई है, और इनको कॉम्बैट करने के लिए सॉल्यूशन खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मेक्सिको का हालत जो इकोनॉमी का जैसे बताया मैंने कि सही नहीं चल रहा है, और जिसका डेटा ये आया 5.9%, जो कि बहुत हाई होता है। 5.9% of the GDP, total GDP, by the end of the year, that is the current ongoing year. Sheinbaum's government will face significant pressure, as already said, to bring it down to 3.5%. एवरेज है ये, इतना तो करना ही पड़ेगा। 3.5 उतना पूरा का पूरा आप नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है विद इन ईयर, राइट। तो कम से कम 3.5 तो एवरेज होता है, इतना तो कम से कम कोशिश करना पड़ेगा शेनबॉम के गवर्नमेंट को कि 3.5% तक उसको डाउन कर पाए। इन इट्स फर्स्ट बजट विच इज ड्यू बिफोर नवंबर 15 में आने वाला है बजट, और बजट के पॉलिसीज जो होंगे वो इसी हिसाब से ओरिएंटेड होने चाहिए। एज इन बजट डेफिसिट को कॉम्बैट करने के लिए जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेने वाली है, अंडरटेक करने वाली है, वो बजट में ही उस हिसाब से ही डिजाइन होना चाहिए। वो पॉलिसी सारे ड्राफ्ट उसी हिसाब से होने चाहिए कि बजट डेफिसिट को कैसे कॉम्बैट करना है, जो कि ड्यू है नवंबर 15, एज इन की नवंबर 15 तक ये डेटा आ जाएगा, बजट आ जाएगा कि कितना गवर्नमेंट का कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, नहीं रहने वाला है। द डोमेस्टिक प्रायोरिटीज, मेक्सिको सिटी के, ये तो बाहर इन्वेस्टमेंट वगैरह की बातें हो गई इंटरनेशनल लेवल पे, या क्या करने वाली है। नाउ as far as the internal policies of a government is concerned, वो अपने मेक्सिको सिटी में क्या क्या डेवलपमेंटल मेजर्स लेने वाली हैं। The very first being, domestically Sheinbaum has vowed to continue the social programs जो ऑलरेडी रन कर रही हैं, जो पहले ही, इससे पहले जो इनके आने से पहले मिस्टर लॉब्स ने जो शुरू करा था, ये सब पॉलिसी सोशल प्रोग्राम्स ऑलरेडी रन कर रही थी, उनको कंटिन्यू करेंगे ये, और उस पर कुछ रोक टोक नहीं, जो आ रहा चलते अभी आ रहा है, जो भी प्रोग्राम्स जो उनके प्रेसिडेंटशिप में ये हुआ था शुरू, वो कंटिन्यूड रहेगा इनके टेन्योर में भी, फॉर विच इज क्रेडिटेड विथ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, क्योंकि ये सब उनके जो पॉलिसी शुरू किए गए थे, जितने भी प्रेसिडेंट के, ये इनके पहले के जो प्रेसिडेंट ने शुरू किया था पॉलिसी, वो काफी कुछ चीजों को कंसिडर करके इम्प्लीमेंट किए गए थे, विच इंक्लूड्स poverty, unemployment, and strengthening of the peso, right? तो ये तीन मेन ग्राउंड्स थे मिस्टर लोब्स के, जब उन्होंने कुछ सोशल प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करवाए थे थ्रू आउट द सिटी ऑफ मेक्सिको, एंड दैट शी फाइंड्स इट एज अप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी, एंड दैट इज व्हाई शी इज नॉट गोइंग टू अमेंड एनीथिंग एज सच, और ये कंटिन्यूड रहने वाला है, डिसकंटिन्यू नहीं होगा। ऑल्सो in a speech in Mexico City's historic Zocalo Square, please note, Zocalo Square पे उन्होंने एक स्पीच दिया था, जहां पर she laid out an ambitious set of 100 pledges ranging from expanding public health care and education, along with this building 1 million new homes, capping prices for key goods यानी key goods include the requisites, the basic food items, and battling gender violence and discrimination. These are going to be the focal points of her as a president. The judicial reforms, जुडिशरी में क्या रिफॉर्म शी एज अ प्रेसिडेंट लाना चाह रही हैं। सबसे पहला जो काफी चर्चे में भी है,
वो ये है कि जो जजेस है, द ज्यूरी शैल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा जरूर। लेकिन सबसे पहले ये हम कंसिडर करेंगे क्रिटिक्स क्या कहते हैं इसके बारे में। क्रिटिक्स का ये कहना है कि आफ्टर अंडरटेकिंग दिस मेजर, दिस पॉलिसी एज टू द इलेक्शन ऑफ ऑल जजेस बाय पॉपुलर वोट विल लीड टू मैनी पॉलिटिकल एंड क्रिमिनल इन्फ्लुएंसेस। ऑब्वियसली वोट्स जो होते हैं मैनिपुलेट होते हैं, कहीं भी इतना फेयर और इम्पार्शियल न्यूट्रल नहीं हो पाता है, राइट। तो ठीक है, जूरी का जो भी इलेक्ट हो जाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन इलेक्शन के दौरान कुछ ना कुछ तो वोट्स मैनिपुलेट होने ही हो, प्रैक्टिकल है ये। तो क्रिटिक्स का यही कहना है कि ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करने के बाद इतना भी फेयर नहीं रहने वाला है जुडिशरी, बिकॉज देयर विल बी पॉलिटिकल एंड क्रिमिनल इन्फ्लुएंसेस टू इम्पैक्ट द लीगल सिस्टम, एंड दैट इज व्हाई इवन द इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेड पार्टनर्स विल हैव अ सेकंड थॉट, राइट। तो इसके काफी लॉन्ग फेचिंग फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्रिटिक्स के जो है टू एन एक्सटेंट जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है, दैट इज योर पर्सनल पर्सपेक्टिव, हाउ मच यू अग्री टू द पॉलिसी एज प्रपोज्ड बाय द प्रेसिडेंट। However, that's all for today. You can subscribe to the YouTube channel of Pathshala Classes. Also, for expedient doubt redressal and for getting free e-materials for your study preparation in CLAT and ALET, please subscribe to the Telegram channel of Pathshala Classes. That's all for today. Thank you so much for connecting with us.